Hi everyone, good morning. I hope all of you will be fit and fine. आज हम लेने वाले हैं एक एडिटोरियल का सेक्शन जिसे हम रीड करेंगे और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करेंगे। सबसे पहले जैसा मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट मैंने किया है कि आप रीडिंग फॉर्मल तरीके से करिए। जब आप फॉर्मल तरीके से रीड करते हैं तो आपको अपने प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और पंक्चुएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन इस पर आपको वर्क करने को मिलता है। तो ये लेटेस्ट पैसेज मैंने लिया है। Let's read this passage and let's find out the amelioration in these aspects. Stepping Stone on Shubhanshu Shukla NASA Axiom ISRO tie-up. The NASA Axiom ISRO tie-up is an admirable outcome. A crew of four astronauts, including India's Shubhanshu Shukla, completed their roughly 2-week mission to the International Space Station on July 15. Mr. Shukla's trip was presumed to have been an intensive rehearsal ahead of his flight as part of India's first batch of astronauts for ISRO's Gaganyaan mission, currently expected in 2027. The presumption is because the goals of Mr. Shukla's trip, which ISRO arranged for by paying north of rupees 500 crore to Axiom Space, have not been officially communicated by Indian authorities. सो गाइज जब आप अपनी रीडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर आउटकम देखते हैं। तो इस तरह से रीड करके आप अपने प्रोनाउंसिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, पंक्चुएशन का एक बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इस तरह से रीड करना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। तो जितने बच्चे मेरा सेशन वॉच कर रहे हैं जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं वो लोग ज़रूर बताएंगे। एंड आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आएगी और वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग इस एक एक लाइन का मीनिंग भी समझेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी समझेंगे और असाइनमेंट के रूप में हम इसका जो जिस्ट है, जिसे हिंदी में हम सारांश कहते हैं, उस जिस्ट को भी हम रेडी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। Fortunately, clarifications from Axiom and NASA have since cast more light on its purpose. While ISRO and the Department of Space are still expected to proactively disseminate what they know about their activities under Gaganyaan, not least because of the mission's 20,000 crore price tag, Mr. Shukla's trip ought to strengthen ISRO's preparations. Human space flight is a highly involved endeavor. Once in space, the crew is on its own, and the resources to respond to a variety of situations are limited. According to a statement ISRO published after the mission launched on June 25, Mr. Shukla and Prasannath Nair, who is also part of Gaganyaaan's first cohort of astronauts and was part of the Axiom mission's backup crew, were familiarized with advanced spacecraft systems, emergency protocols, scientific payload operations, microgravity adaptation, space medicine, and survival traits. As a mission pilot per Axiom, Mr. Shukla was also coached on docking and undocking, manual operations, atmospheric re-entry, and anomaly management. On board the space station, Mr. Shukla was exposed to operations in the Japanese and European modules, for which he had he and Mr. Neer were trained in the Japan and Germany. ISRO chairman V. Narayanan also said that the Axiom mission cost less than what ISRO might have had to invest if it had to train Mr. Shukla on its own. In all, the NASA Axiom ISRO tie-up emerges as an admirable outcome even as space agencies continue to closely guard space technologies for their strategic value. So this was all about this passage and थोड़ा section और है. Concerns that the limitations imposed by the US international traffic and arms regulations would prevent the duo from learning much may also be laid to rest. Instead, they may be replaced by concerns about ISRO's piecemeal communication. Astronauts cut inspirational figures and appeal to all ages. As India prepares for its first human space flight mission, there can be no better way to build excitement than facilitating access to India's astronauts. The lack of initiative is hard to rationalize, although it is still not too late. ISRO, as well as India's soft power,
platform will make copious gains by expanding outreach and easing public access to the spacefarers. So this was all about this passage. और अब जब एक बार आप इसका रीडिंग कर चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, और आइडिया लग जाने के बाद अब काफ़ी आसान हो जाता है इसका मीनिंग समझना। तो आइए इसका मीनिंग समझते हैं और अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर करते हैं। और मीनिंग को समझने के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका जो जिस्ट है वो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। स्टेपिंग स्टोन, यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन का मतलब है कि बहुत ही अच्छा प्रयास है। मतलब जब भी कोई आप बड़ा काम करते हैं तो छोटे छोटे स्टेप से वो बड़ा काम होता है। तो यही कहा जा रहा है कि ये एक काफ़ी अच्छा एक प्रयास है एक आगे बढ़ने का। ऑन शुभांशु शुक्ला नासा एक्सियोम इसरो टाइप। नासा एक्सियोम और इसरो का जो टाइप हुआ है, जो कि शुभांशु शुक्ला अभी स्पेस पे गए हैं, तो वो बहुत ही एक स्टेपिंग स्टोन है, बढ़ते हुए कदम का एक आइडेंटिफिकेशन है। द नासा एक्सियोम इसरो टाइप इज एन एडमायरेबल आउटकम। प्रशंसनीय परिणाम है, मतलब जो टाइप हुआ है, जो सहयोग है आपस में, वो एक प्रशंसनीय परिणाम है। A crew of 4 astronauts, including India's Shubhanshu Shukla, completed their roughly 2-week mission to the International Space Station on July 15. जुलाई 15 को 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ जो क्रू गया था, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी हैं, उन्होंने लगभग 2 वीक का मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जुलाई 15 को अपना कंप्लीट कर लिया। Mr. Shukla's trip was presumed to have been an intensive rehearsal ahead of his flight as part of India's first batch of astronauts for ISRO's Gaganyaan mission, currently expected in 2027। तो 2027 में जो हमारा गगनयान मिशन इसरो का है, उसमें जो भारत का जो पहला बैच जाने वाला है, ठीक है, तो पहले बैच में जो उसका एक बहुत अच्छा मतलब इंटेंसिव रिहर्सल हो गया है। इंटेंसिव रिहर्सल का मतलब गहन एक तरह से अभ्यास हो गया है, और जो जो ट्रिप है उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये काफ़ी इंटेंसिव रिहर्सल रहा है, काफ़ी गहन अभ्यास हो गया है। The presumption is because the goals of Mr. Shukla's trip, which ISRO arranged for by paying north of rupees 500 crore to Axiom Space, have not been officially communicated by Indian authorities. अभी तक इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा ऑफिशियली ये कम्युनिकेट नहीं किया गया है कि भाई 500 करोड़, यहाँ पे नॉर्थ शब्द आ रहा है, नॉर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़ एक्सियोम स्पेस को 500 करोड़ रुपए का धनराशि जो दिया गया है, ठीक है, तब जाकर के इसरो ने इसे अरेंज किया है। तो इसरो ने जो मिस्टर शुक्ला का जो ट्रिप अरेंज किया है वो 500 करोड़ रुपए दे करके अरेंज किया है। तो अभी तक इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फॉर्चुनेटली क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम एक्सियोम एंड नासा हैव सिंस कास्ट मोर लाइट ऑन इट्स पर्पस। भाग्यवश नासा और एक्सियोम की तरफ से जो क्लैरिटी आई है वो इसका पर्पस बयां करते हैं। While ISRO and the Department of Space are still expected to proactively disseminate what they know about their activities under Gaganyaan। तो disseminate का मतलब होता है spread करना, जबकि while माने जबकि इसरो और द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को अभी भी उनसे आशा की जाती है कि वो प्रोएक्टिवली मतलब पहले से ही थोड़ा तेजी से इस बात को स्प्रेड करेंगे व्हाट दे नो अबाउट देयर एक्टिविटीज अंडर गगनयान। जो भी वो गगनयान के अंतर्गत जो एक्टिविटीज हैं, जो भी वो जानते हैं, वो जल्दी से उसको स्प्रेड करेंगे। नॉट लीस्ट इस वजह से नहीं कि बिकॉज मिशंस 20,000 करोड़ प्राइस टैग, बात ये नहीं है कि इसका जो प्राइस टैग वो बहुत हाई है इसलिए उनको रिवील करना चाहिए। बात ये भी है कि लोगों के अंदर एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, और जो देशभक्ति की भावना है वो वास्तव में बढ़ती है जब आप अपने देश के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। नए लोगों का भी मन बनता है कि मैं भी इस करियर में जाऊं। तो इसलिए कहा जा रहा है मिस्टर शुक्लास ट्रिप ऑट टू स्ट्रेंथन इसरोज प्रिपरेशन। और मिस्टर शुक्ला की जो ट्रिप है, यहाँ पे देखिए ऑट टू का प्रयोग किया गया है। जब भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है तो ऑट टू लगाते हैं। तो इसरो की जो तैयारी है
वो मिस्टर शुक्ला की ट्रिप ने काफ़ी मजबूत की है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज़ अ हाईली इन्वॉल्व एंडेवर, और ह्यूमन का स्पेस पे जाना, स्पेस फ्लाइट, ये वास्तव में काफ़ी इन्वॉल्व एंडेवर है। मतलब काफ़ी इसमें लगने की ज़रूरत है, काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये कोई नॉर्मल प्रयास नहीं है। अभी आपने सुना ही होगा, सभी को पता होगा, अहमदाबाद एयर क्रैश का। सो उसके बाद इस इनिशिएटिव पे जाना वास्तव में काबिल तारीफ है। बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है। फर्दर इसमें और कहा गया है, वंस इन स्पेस, एक बार अगर आप स्पेस में होते हैं, द क्रू इज ऑन इट्स ओन। क्रू को ही सब कुछ अपने स्तर पे समझना, मैनेज करना होता है। वास्तव में ये बात सही है कि अगर आप स्पेस पर हैं तो फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आपका मूवमेंट, आपका पर्सनल केयर, आपका मिशन पे ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ आपको अपने स्तर पे ही संभालना होता है। एंड द रिसोर्सेज टू रिस्पॉन्ड टू अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस आर लिमिटेड। और भाई रिसोर्सेज जो हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खाने को मिले, या खाने को मिला तो फिर मतलब आपको सर्वाइवल ट्रिक्स पता होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट योर होम। According to a statement ISRO published after the mission launched on June 25, Mr. Shukla and Prasanat Nair, सो एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कि इसरो ने जून 25 को लॉन्च, मिशन लॉन्च के बाद, मिस्टर शुक्ला और प्रसन्त नेर का, हु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गगनयान फर्स्ट कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब ग्रुप होता है, बैच होता है। तो जो कि दोनों ही गगनयान के पहले बैच के एस्ट्रोनॉट्स हैं, और ये एक्सियोम मिशन बैकअप क्रू के पार्ट थे। उनको फेमिलराइज कराया गया एडवांस स्पेस क्राफ्ट सिस्टम से, इमरजेंसी प्रोटोकॉल से। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। अगर इमरजेंसी है तो कैसे फिर सेट ऑफ रूल्स हमें अप्लाई करने हैं अपने आप को सेव करने के लिए। साइंटिफिक पेलोड ऑपरेशंस, साइंटिफिक पेलोड ऑपरेशंस के बारे में उनको फेमिलराइज कराया गया। माइक्रोग्रेविटी एडाप्टेशन, वहाँ पे गुरुत्व जो बहुत ही कम स्तर पे होता है, उसको किस तरह से हम एडाप्ट करें, अपने आप को उसके साथ लाएं। स्पेस मेडिसिन, ऑब्वियसली स्पेस में आपको उस तरीके का खाना तो मिलेगा नहीं, तो किस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। सर्वाइवल ट्रेड्स, इन सब के बारे में प्रसन्नत नायर और शुभांशु शुक्ला दोनों को ट्रेन किया गया है। एज द मिशन पायलट पर एक्सियोम, मिस्टर शुक्ला वॉज ऑल्सो कोच्ड ऑन डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। किस तरह से डॉकिंग और अनडॉकिंग की जाती है जब आपका स्पेस क्राफ्ट वहाँ पे मिलता है जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो उसे डॉकिंग कहते हैं। फिर कैसे उसको वहाँ से हटना है, उसे अनडॉकिंग कहते हैं। मैनुअल ऑपरेशंस, एटमॉस्फेरिक री एंट्री, एटमॉस्फेरिक री एंट्री, दोबारा से एंट्री करना, एंड एनोमैली मैनेजमेंट, पूरा का पूरा जो आपका ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में। On board the space station, Mr. Shukla was exposed to operations in Japanese and European modules. और ऑन बोर्ड द स्पेस स्टेशन, मतलब जब वो स्पेस स्टेशन पहुंचे तो मिस्टर शुक्ला को जापानीज और यूरोपियन मॉड्यूल्स के तहत ट्रेन किया गया, फॉर विच ही एंड मिस्टर नीर वर ट्रेन इन जापान एंड जर्मनी, जिसको पहले उनको जापान और जर्मनी में भी ट्रेन किया गया था। इसरो चेयरमैन वी नारायणन हैज ऑल्सो सेड दैट द एग्जाम मिशन कॉस्ट लेस देन what ISRO might have had to invest if it had to train Mr. Shukla on its own. अगर मिस्टर शुक्ला को इसरो को अपनी कॉस्ट पर ट्रेन करना होता तो काफ़ी ज़्यादा इसकी लागत आती, ऐसा इसरो चेयरमैन वी नारायणन जी ने कहा है। इन ऑल, मतलब सब कुछ मिला जुलाकर, अगर सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो नासा एक्सियोम इसरो टाई अप इमर्जेस एज एन एडमायरेबल आउटकम, काफ़ी प्रशंसनीय आउटकम है। Even as space agencies continue to closely guard space technologies for their strategic value, जबकि स्पेस एजेंसीज अपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज को बहुत ही क्लोजली गार्ड करती हैं जिससे कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो उनकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू के अकॉर्डिंग। Concerns that the limitations imposed by the US international traffic in arms regulations would prevent the duo from learning much may also be laid to rest. कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि यूएस इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन। यूएस
का जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है आर्म्स रेगुलेशंस में, जो कि कुछ अपने नियम इम्पोज करता है, वो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा दोनों को लर्न करने न दिया हो, और इसके बजाय इंस्टेड दे मे बी रिप्लेस्ड बाय कंसर्न्स अबाउट इसरोज पीस मील कम्युनिकेशन। और इसरो का जो पीस मील कम्युनिकेशन है, टुकड़ों में जो जानकारी देना है, ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं करते हैं, तो उसके द्वारा वो रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए। एस्ट्रोनॉट्स कट इंस्पिरेशनल फिगर्स एंड अपील टू ऑल एजेस। एस्ट्रोनॉट्स सभी उम्र के लोगों को आकर्षित करते हैं और वो वास्तव में प्रेरणा के स्रोत होते हैं। एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जैसा कि भारत अपना फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मिशन को प्रिपेयर कर रहा है, देयर कैन बी नो बेटर वे टू बिल्ड एक्साइटमेंट दैन द फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स। तो कोई भी और अच्छा तरीका नहीं हो सकता एक्साइटमेंट बिल्ड करने का, जिस बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स। मतलब इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका एक्सेस, उनका फेमिलराइजेशन सभी के साथ हो। द लैक ऑफ इनिशिएटिव इज हार्ड टू रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब इसको तर्क संगत बनाना। तो इसको तर्क संगत बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑल्दो इट इज स्टिल नॉट टू लेट, अभी भी कोई देरी नहीं है। इसरो एज वेल एज इंडिया सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म विल मेक कोपियस गेन्स बाय एक्सपैंडिंग आउटरीच एंड ईजिंग पब्लिक एक्सेस टू सी फेयरर्स। अगर पब्लिक एक्सेस हो जाए सी फेयरर्स का तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, और कोपियस गेन उनको अत्यधिक मात्रा में, कोपियस का मतलब अत्यधिक मात्रा में होता है, अगर वो अपनी आउटरीच को एक्सपैंड कर दें तो इसरो को और भारत का जो सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म है उसको काफ़ी अधिक आउटरीच मिलेगी। सो आई होप आपको सभी डिफिकल्ट वर्ड्स और इस पैसेज का जो जिस्ट है वो पूरा समझ में आ गया होगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वी आर really getting a very good response from you all, and stay tuned with us and keep working on your language skills. अगर आप Facebook पे हमें follow करना चाहते हैं, so you can follow us on Facebook as well, and we are available with the same name, Best English Speaking Course, on the Instagram. And if you want to join online classes, so you may simply call at our official number, that is 6393 350 470. So best wishes to you all. Thank you for attending this session. जय हिंद।